Welcome back. Welcome to Road to Lok Sabha 2024. The Haryana political Game of Thrones gets more intense. After BJP-led government in the state found itself in a spot, the spotlight this time is on former Deputy Chief Minister Dushyant Chautala and his party, the Jananayak Janata Party. Inside the JJP, there's a brewing rebellion with 6 of the party's 10 MLAs aiming to dethrone Chautala as their legislative leader. These dissenting members even made a move to meet with the governor but came up short. Now, remember on May 7th, the Haryana government took a significant hit. 3 independent MLAs pulled back their support from BJP's Nayab Singh Saini-led government, plunging it into a minority. This triggered Dushyant Chautala to call for a floor test, boldly stating that the BJP no longer holds a majority and declaring that the JJP would vote against the BJP during the test. Keep in mind, the JJP was once a close ally of the BJP but is currently in alliance with Congress, which is in the opposition. Speaking of the Congress, they are not just sitting on the sidelines. Alongside another ally, the Indian National Lok Dal, they are echoing the call for a floor test or even to push for president's rule. While the BJP, led by former Chief Minister Manohar Lal Khattar and current Chief Minister Nayab Singh Saini, claims confidence in maintaining the majority with an eye on potential crossovers from both JJP and Congress. The real question now is, what's next for JJP? Will this internal strife weaken their stance, or can they pull through a united front? While the ball was initially in the BJP's court to prove its majority, now all eyes are back on the JJP, watching closely to see how this power play will unfold. I'm being joined right now by Dr. Pankaj Beniwal, spokesperson for BJP, Keval Dhingra, who's a spokesperson for Congress, Dr. Virendra Sindhu, who's a national spokesperson for JJP. Thank you very much, all of you, for joining us. But if you could give us a few more minutes, let's just quickly play in the reactions that have come in through the day. Have you handed over the memorandum? We have handed over the memorandum to the secretary of the governor. But governor was not there. Have they confirmed the timings to you? Have they confirmation given The governor has to leave for Telangana, which was conveyed to us, and we submitted the memorandum to the secretary. What was your demand in the memorandum? Let us know. We are full press conference is going to take. आज सरकार हमारे टीम है, तो हमने गवर्नर साहब से आग्रह किया है कि इसको नैतिकता तौर पे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और गवर्नर साहब से आग्रह किया है राष्ट्रपति शासन में आगे चुनाव कराएं, फ्रेश मैंडेट लें। नहीं, हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, क्योंकि मैं तो कहा जेजेपी कह रही है, पहले भी इन्होंने ऐसे किया, 10 MLA दिखाए, लेकिन 3 महीने के लिए सरकार बनाने की बात नहीं है। ये सरकार अल्पमत में है, डिसॉल्व होनी चाहिए और चुनाव होने चाहिए। नंबर है तो बुलाएं विधानसभा, या अपने नंबर जो है गवर्नमेंट के सामने परेड कराएं। 30 हमारे विधायक हैं, 30 एकजुट हैं। उनको कोई किसी से सरोकार नहीं है, वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देना चाहिए लिखित रूप में राज्यपाल महोदय को कि उनके पास कितने विधायक हैं, वो लिखित रूप में दें। ऐसे गुमराह मत करें। अभी हमने विश्वास मत हासिल किया और जब समय आएगा हम विश्वास मत हासिल करेंगे। कांग्रेस के समय में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लोगों को इन्होंने लाइन में लगा करके रखा है और इनकी सोच रहती है कि लोगों का ध्यान इनके घोटालों की तरफ ना जाए, लोगों का ध्यान इनके भ्रष्टाचार की तरफ ना जाए, लोगों को जो प्रताड़ित किया है उससे ध्यान डाइवर्ट करने की इनकी ये सोच रहती है। All right. So I think we've lost line with Keval Dhingra of the Congress, but I'm also being joined by Dr. Pankaj Beniwal, who's a spokesperson for BJP, as well as Dr. Virendra Sindhu, who's the national spokesperson for JJP. Of course, Dr. Virendra Sindhu, the first question to you,
what's really happening with JJP. On one hand, you really moved wanting the trust vote to happen in the assembly, but it just seems totally unwieldy at this point. JJP doesn't seem to be one house at all. देखिए, आज के दिन हरियाणा का जो संख्या बल है वो 88 मेंबर्स का है। 90 में से 88 मेंबर्स हैं। 88 मेंबर्स में से भारतीय जनता पार्टी के पास 40 एमएलए हैं जो फिगर में हैं। उसके साथ जो बाकी के 7 निर्दलीय एमएलए हैं, 7 निर्दलीय एमएलए में से 3 ने कांग्रेस को सपोर्ट करने की भी घोषणा की है और उसके साथ एक एमएलए पहले उनके साथ नहीं था, एक दूसरी पार्टी का जो एमएलए उनके साथ नहीं था, तो मतलब 5 उनसे बाहर हैं। तो आज के दिन अगर जो लोगों को दिख रहा है या सच्चाई जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास 40 और या 1 या 2 एमएलए हो सकते हैं, है या नहीं है, मतलब 42 उनके 42 स्ट्रेंथ उनकी हो सकती है। ये हरियाणा की जनता का ये मौलिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि उनको पता लगे कि जो हरियाणा में सरकार है उसके पास बहुमत है या नहीं है। हमने माननीय राज्यपाल को, गवर्नर को लिख के लेटर दिया है, उसमें फिगर बताई कि हरियाणा में इतनी इतनी स्ट्रेंथ हैं उस, और पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश की जनता की निगाह आज के दिन हरियाणा की तरफ देख रही है और वास्तव में ये लोगों का अधिकार है कि उनकी चुनी हुई, उनके ऊपर जो राज कर रही है, उनके ऊपर जो सरकार नियम कानून बन रहे हैं, जो पास हो रहे हैं कानून, क्या उस सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। But Virendra Sindhu ji, Virendra Sindhu ji, your own JJP leader, Mr. Babli, while speaking to Mirror Now, has very clearly said that they are not happy. Most of the MLAs of JJP are not going to follow what Dushyant Chautala is wanting to happen. So it really seems, even if you're giving these numbers also seem to be changing very fast, considering how the battle for 6 also, if it were, isn't really like that anymore. देखिए, मतभेद और मनभेद और राजनीति में एक दूसरे से नाराजगी चलती रहती है, लेकिन संवैधानिक जो तथ्य हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है, उनसे अलग कोई भी नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो विधायक जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीत के आया है उसको उसके साथ रहना पड़ेगा। उसको ना सिर्फ सदन के अंदर रहना पड़ेगा, ना उसके कहने पे वोट डालनी पड़ेगी, बल्कि उनको राजनीतिक रूप से भी उनके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। और हम अक्टूबर 2024 तक के लिए 10 विधायकों के साथ हैं और 10 के 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, और ये उनकी संवैधानिक कानूनी मजबूरी है कि उनको जननायक जनता पार्टी के व्हिप को, आदेश को मानना पड़ेगा। Okay, Dr. Pankaj Beniwal, if I can come to you. At one point, it just seemed that what the opposition keeps blaming the BJP of managing to topple governments seemed to be, for once, that Congress was able to do something similar, if some may call resort or Operation Lotus, if that were. But look at what Congress or the JJP at this point really is. Dushyant Chautala going and asking for a trust vote. Congress saying we need a trust vote, asking time with the government. But would you say that what has happened in Haryana at a time of elections across the country, Haryana elections specifically also, just shortly for that matter, this is a big lowdown or a letdown for BJP? Very good evening to Sneha and all my colleagues. देखिए, देवेंद्र सिंह बबली जी ने स्पष्ट कर दिया है कि दुष्यंत चौटाला एक विलन के जैसे काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये देवेंद्र सिंह बबली जी का बयान है कि दुष्यंत चौटाला विलन के जैसे काम कर रहे हैं। और हम जो 8 लॉ मेकर्स से, हम 8 लोगों ने जो लॉ बनाया था जेजेपी के लिए, आज उनसे बिना सलाह मशवरा किए ही आज दुष्यंत चौटाला ने ऐसा स्टेप लिया है, जबकि हमारे को कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा कि आज दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की कोशिश की है, जबकि ये 8 लॉ मेकर्स जो थे उनकी पार्टी है। तो हम अगर चाहेंगे तो दुष्यंत चौटाला को उस पद से हटा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में नहीं है, अल्पमत में है जेजेपी। जेजेपी के पास अपने जो 10 नंबर हैं, जिनका ये आज क्लेम कर रहे हैं कि 10 नंबर हैं, बबली जी ने तो ये भी कहा है कि 8 एमएलए जो हैं, सिर्फ ये 2 एमएलए रह जाएंगे, मम्मी और बेटा, सिर्फ ये 2 ही साथ होंगे और 8 एमएलए जो इनके अगेंस्ट हैं। ये तो सीधा सीधा इनकी ही
पार्टी के एक एमएलए हैं देवेंद्र सिंह बबली जी, वो कह रहे हैं, ये हमारा कथन नहीं है। और जब फ्लोर टेस्ट की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, हम मेजोरिटी के अंदर हैं और हमारे को कोई भी परेशानी नहीं है फ्लोर टेस्ट को पास करने के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जेजेपी और जो ये कांग्रेस वाले साथी कह रहे हैं, आपके पास 40 संख्या आप लोग बता रहे हैं कि 30 कांग्रेस के पास है और 10 जेजेपी। मैं क्लेम whether करता the हूं floor कि test ये सारे happens or not, the question is, has this put BJP in a spot in the middle of elections? देखिए, जब 13 मार्च को हमने अपना बहुमत सिद्ध किया तो हमारे पास 48 एमएलए थे। अगर उसमें से 3 एमएलए का अगर मन बदल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है इसमें। अगर ये कहें कि आज 1 तारीख को तो हमने शपथ ली है और 2 तारीख को कुछ एमएलए कहते हैं कि भाई हमारे का तो मन बदल गया, लेकिन जब उन्होंने 13 मार्च को ये दिया था कि हम 6 महीने तक सरकार के साथ हैं, वो भी तो कोई चीज मायने रखती होगी। ऐसा नहीं है कि आदमी का मन बदल गया और बार बार में फ्लोर टेस्ट होगा। वो 6 महीने का प्रावधान है, वो वहां पर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्लेम करता हूं केवल ढींगरा जी वाले 10 अपने एमएलए के साइन करके राज्यपाल के पास पहुंच जाएं और कांग्रेस वाले 30 एमएलए के साइन करा करके अपने 30 एमएलए के साथ राज्यपाल जी के पास पहुंच जाएं। ये मेरा क्लेम है। ये नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पिछली बार भी जब इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर के आए थे कांग्रेस वाले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उसमें नहीं पहुंचे थे, उन्होंने वॉकआउट किया था क्योंकि ये डर लगता है, इनको डर लगता है इस चीज का। ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए स्नेहा जी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ना तो कोई मुद्दा है चुनाव लड़ने का। इनको पता है जैसे क्लीन स्वीप पिछली बार 10 की 10 Keval Dhingra, you've got these strong allegations, something that BJP keeps saying. And right now what seems to be unfolding is exactly that. So you have JJP who made very strong claims. Dushyant Chautala going ahead and saying something. And now Dushyant Chautala is being disowned by his own MLAs. Dushyant Chautala, he's been accused of his own MLAs of playing personal politics because his ego was hurt. That's why he's now saying in a letter to the governor that we are not going to support this government, but his MLAs are not towing that line. I mean, this seems to be only a family feud that's playing out in a very different sense. देखिए, जो जेजेपी के एमएलए हैं वो फ्लोर टेस्ट के लिए व्हिप की बात करते हैं कि हम व्हिप लागू करेंगे तो 10 के 10 एमएलए सेम वोट करेंगे, अदरवाइज हमारी कैंडिडेटशिप कैंसिल होगी। they are saying on that only, but what we are saying, हमारे पास 30 हैं। Sir, despite whip, we have had precedents of JJP MLAs cross voting. That's why you have four MLAs already. When the floor test come, सुनिए, जब when the floor test come, how can we say in before कि वो cross voting होगी? वो तो जब floor test पे जाएंगे, then we can see. But now what is the system? We have 30 and 3 is independent to come with us, and 1 is Abhay Chautala and 1 is Balraj Kundu, and 10 are JJP. We are 45 and BJP is 43. They have Alpat, they have a not full number, and वो अल्पमत में है, लेकिन फिर भी शरारत के रूप में आप ये देखिए, खट्टर साहब नायब सैनी 9.5 साल लगातार जो हमारे हरियाणा की पैसा की लूट हुई है वो इन लोगों ने की है, उसमें जेजेपी भी शामिल थी। लेकिन आप 60,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ हो गया, लेकिन ये लोग सत्ता को लूटते रहे, पैसा लूटते रहे। बट आज पोजीशन ये है कि मोदी जी देश से जा रहे हैं, 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी जाएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा और ये सब क्लैरिटी में आएगा। बट बिफोर इन दैट गवर्नर विल टेक फैसला कि व्हाट दे विल डू, इफ या वो राष्ट्रपति शासन लगाए, नंबर 1। बीजेपी is saying you are not even going to get the signatures of JJP or Congress as is seen in the past. We have a full number. अगर गवर्नर बुलाते हैं तो हम परेड कराने को तैयार है, लेकिन हमारे पास 45 नंबर बनते हैं सभी को मिलाकर और बीजेपी के पास 43 बनते हैं। तो हाउ कैन दे से दिस? इफ दे से इसकी इनके पास है कोई एमएलए, हमारे पास भी बीजेपी के बहुत सारे एमएलए, वी कैन से आल्सो दैट। सो दैट इज नो इशू। द इशू इज दिस कि गवर्नर हाउ विल टेक फैसला, वो अगर हमें बुलाते हैं देन विल गो एंड विल सी द नंबर। That is no issue. Okay, allow Dr. Pankaj Beniwal to speak. Allow Dr. Pankaj Beniwal to give a quick response.
If they have 45 numbers, then prove it. It's my challenge. If they All have 45 numbers, then That's give why the they letter have to said. the governor. That's why they have said. That's why they have said. They are not having 45 numbers. I know very well, and We they are all given also know very well. 45% given written You- to the governor. JJP वालों ने कितने ने दिया? 45% How many members from individually, JJP? all they are written to the How governor. many How can members you from say JJP? this? How many members No, from no, no. JJP? How you can say that? You are- Ki JJP have the 10 saying members everybody against the has BJP 45 government. If you have any Our- clarifications, Listen, if you listen, have listen. any Mr. clarification, Pradeep Paniwal, listen to me. No, not Pradeep, I am he's saying Pankaj wrong. Beniwal. अभी You are saying wrong. सुप्रीम I'm कोर्ट saying में all party written to the governor, 45 numbers are Last there. question to Your- Dr. Virender your Sindhu. number is 43. Between this Bubbly number say that- game, is this essentially a ego game of Dushyant Chautala now that is going severely wrong for JJP as well? Is this going to be nothing short of an albatross cross? देखिए जो फिगर अभी कांग्रेस के साथी ने बताई 45 की जो स्ट्रेंथ है वो है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 साल पहले शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर के केस में और उससे 45 पहले कैसे हो सकता है, एसआर सर? बोमाई लेकिन 45 तो इम्पॉसिबल है। आप 45 बोल कैसे रहे हैं? डू यू हैव द नंबर्स? देखिए आप बताएं नाम बता कि- दीजिए मुझे 45 कैसे हैं? नहीं आप देखिए आप सुनिए 30 कांग्रेस मैं के बताऊंगी एमएलए क्यों 45 क्यों नहीं हो सकते हैं? 45 कैसे हैं बताइए? अब मैं बता रहा हूँ सुनिए देखिए 30 जो एमएलए हैं वो 30 कांग्रेस के आज के दिन लिस्टेड एमएलए हैं 10 जननायक जनता पार्टी के एमएलए हैं 3 निर्दलीय इंडिपेंडेंट एमएलए ने अभी कांग्रेस को सपोर्ट किया है एक एमएलए बलराज कुंडू पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है एक और पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल वो भी पहले वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे चुकी है तो ये 45 फिगर है और ये All right. संवैधानिक ये फ्लोर टेस्ट की बात करें फिगर है या नहीं है हमारे पास एमएलए हैं या नहीं है भागे हुए हैं या सर, नहीं है तो आप आज फ्लोर टेस्ट करवा अगर लीजिए। गवर्नर नायब बुलाते सिंह हैं, आप सैनी ने कितने बात- MLAs नायब बोल सिंह- सकते हैं? Because- नायब सिंह सैनी ने बिकॉज आप ही 12 के एमएलए बोल रहे हैं हम तो नहीं करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू गो, 6 भी नहीं मिलने वाले आपको। एक अलग चीज है हर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन दे दिया We are ये अलग totally बात out है। of time. Number games hugely critical to any government, but at this point, while claims being made really for staking confidence, for the trust motion being introduced, moving to the governor, what really remains the challenge is, will BJP or the Congress and JJP be able to keep their house in order? Thank you, Dr. Pankaj Beniwal, Mr. Keval Dhingra, as well as Dr. Virender Sindhu for joining us. Time for a short break.